So when we open the SPSS, we show this type of window. Here it is asking which data set you want to open. आपको कौन सा डेटा सेट ओपन करना है, वेदर आपको एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स यूज करना है, यानी कि आपने डेटा कहीं पे पहले से स्टोर कर रखा है एसपीएसएस फाइल में, आप उसको यूज करना चाहते हैं, या आपने किसी और टाइप की फाइल में जिसे हम एक्सेल कहते हैं या सीएसवी फाइल, आपने उसमें डेटा स्टोर कर रखा है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, या आप डेटा को टाइप करना चाहते हैं, या आप हेल्प की मदद से ट्यूटोरियल को रन करना चाहते हैं. देयर इज ऑप्शन रन द ट्यूटोरियल, दैट विल इज ए हेल्प ऑप्शन. यू कैन गेट हेल्प to work with the SPSS. So I am starting with type in data. Now I am going to show a data set to you. First you try to enter it. I am giving you 5 minutes. It is data set in which there are case number, that is you can say serial numbers, age, that is age of the person, gender, which shows the gender of person, their marital status, their education level, employment category, and income in 100 rupees per month. And after the entering the data, there is some code which is for education and for employment category. Is it visible to all? So for entering the data, our first case number, सबसे पहले हम केस नंबर को, जब हम एसपीएसएस ओपन करेंगे उसमें दो व्यू होंगे, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू. सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे. ओके, वेरिएबल व्यू में सबसे पहले हम केस नंबर्स का वेरिएबल डिफाइन करेंगे. सो हियर इट इज SPSS does not take into consideration any specific character or special character like @ space dash. ओके, SPSS जब हम वेरिएबल नाम डिफाइन करते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं करता है, उसमें हम _ @ that's why I have written case number without any space. अब हमको ये बताना है कि ये केस नंबर है, तो इसके लिए हम लेबल में जाएंगे, वहां पे लेबल में हम लिख देंगे केस नंबर. You can write number of the case. Then you can see it is the number from 1 to 30. So what should be its measure? Already it is given as unknown. So it is, these are the numbers and which are increasing. So we can write it as scale variable. So we take measure as scale. Next variable is age. In the name we will give age. Then in label we can write age of the person. Okay. It is also a continuous variable, so its measure should also be put on the scale. Third is gender. We can take its label as
gender of the person. Now there are two genders, male and female. So here we have to define some coding for male or female. आप दो तरह से डेटा को एंटर कर सकते हो. नंबर 1, यहाँ पे न्यूमेरिक की जगह पे आप स्ट्रिंग ले लो और उसमें बार बार मेल और फीमेल को टाइप करो. या दूसरा तरीका है, आप इसको न्यूमेरिक तो इसको कोड डिफाइन कर दो. 1 is for male and 2 is for female, और 1 is for female and 2 is for male. It depends upon you कि आप 1 को मेल ले रहे हो या 1 को फीमेल ले रहे हो. सो इसके लिए वैल्यूज पे जाएंगे. वैल्यू पे जब हम जाएंगे तो साइड में एक बटन क्या आ रहा होगा छोटा सा. इस बटन पे हम क्लिक करेंगे. इट विल ओपन ए विंडो. आपको ये विंडो ओपन होके मिलेगी. Supposing 1 for male, I am typing value 1 for male, then click on add. Then you will show that 1 is equals to male is written in this box. Similarly, I will type 2, and in label I will type female, then click on add. Okay, any doubt? Then click on OK. Now in the data set we have two categories. One is male, other is female, and we cannot arrange male and female in ascending or descending order. That means these categories are of nominal type. So we put the measure as nominal. So measure will be nominal. Is it clear? I am skipping marital status because it will take too much time, and I have to put it short as weather is not good and we have to go by with time. So after marital status there is another variable which is education. Now there is education. Again it is given in the numbers, so we take it as number. We can define label education of the person. Now we will again give them the labels. Now in the data set you will see in the last, 1 is for high school, 2 is for intermediate, 3 is for graduate, and 4 is for postgraduate. So in value we will type label will be high school. Click on add. 2 intermediate, again click on add. 3 as graduate, then click on add. 4 as postgraduate, again click on add. Now click on OK. Now education can be arranged in ascending or descending order. High school is lower level, intermediate is above it, graduation is above intermediate, and post graduation is above the graduation. So this data is in ascending order. So but it is categorical. So we can take its measure as ordinal. Okay, is it clear? Now next last variable is income. Again it is numeric. I am taking label income of the person. It is a continuous variable. Income can be any number, so we cannot define values for it.
It is not categorical, but it is a continuous. So here we again take measure as scale. Is it clear? Now variable view of the data is prepared. Now we go to data view. वेरिएबल व्यू सभी को क्लियर है? Now we are going to data view. When you go to data view, आप देखेंगे कि आपके ऊपर के जो कॉलम्स की फर्स्ट रो है, आपने जितना भी उधर वेरिएबल नेम में टाइप किया है वो सब आपके कॉलम की पहली रो में रिप्रेजेंट हो रहा है. Here it is case number, it is age, it is gender, it is education, it is income. वेरिएबल व्यू प्रिपेयर कर लेने से हमको ये फायदा है कि हम किस पार्ट पे हमें कौन सा वेरिएबल की वैल्यू एंटर करनी है ये हमको आइडिया मिल जाता है. वरना कभी कभी क्वेश्चनर एंटर करते समय ऐसा भी होता है कि हम एक कॉलम को स्किप कर गए या एंटर करना भूल गए तो हमारा डेटा मिसलीडिंग हो जाता है. तो अगर हम ऊपर हेडिंग हम देखते चलेंगे तो आप डेटा कितना भी डेटा एंटर कर लीजिए, दैट वो हेडिंग आपको दिखाई पड़ती रहेगी. तो आप डेटा को इजीली एंटर कर सकते हो. ठीक है. केस नंबर में वी कैन टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड so on. These are the case numbers up to 30. Then ages 55, 56, 28, 24, 25, 45, 44, 46, 41, 29, 34 and so on. Okay. Now in gender, it is written as male and female. By chance I am forget that what is the code for male and what is the code for female. What I have written. थोड़ी देर के लिए हम भूल गए कि हमने किसको मेल कहा है और किसको फीमेल कहा है. Now you will see there is a button at this place that is called as value labels. आप बटन पे कर्सर को रखेंगे तो आपको बटन का नाम दिख जाएगा, उसमें वैल्यू लेबल्स का बटन है, आप उसको क्लिक कर लीजिए थोड़ी देर के लिए. ओके, आपने क्लिक कर लिया. नाउ जेंडर पे आ रहे हैं, आपको ये एक एरो बन के दिख रहा है. ठीक है, इसमें आपके दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल. आपको जो चाहिए आप उस पर क्लिक कर लीजिए. सपोज पहले पर्सन का जेंडर है फीमेल, हमने फीमेल है वैल्यू लेबल. There will be two arrow. One side it will be written as 1, other side it will be written as A. Using that you can change the arrow. Okay. Second one in the data set is male. So you can select male. And if you will off that button, you will see it is 2 for female and 1 is for male. Now next is female, you can type 2. Then other is up to 8 that are male, you can type 1. Then 9 is also male, 10 is female, 11 is male. So in that manner you can type your data for categories. Again, if you click on value label, you will get
female in the place of 2 and male in the place of 1. Next is education. Education is given 1 2 3 in terms of 1 2 3 4. We can type 1 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 and so on. And similarly, we can type income as 72, 153, 28, 26, 23, 76, 144, 75, 26, 19, 89 and so on. इस तरह से हम अपना डेटा SPSS में एंटर कर सकते हैं. It is the one method for entering the data into the SPSS. Okay? किसी को कोई डाउट? Now there is another method for entering the data. SPSS में इस डेटा को एंटर करने में अगर आप कंप्यूटर के साथ फैमिलियर हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे. बट अगर आप इसी डेटा को एक्सेल पे एंटर करते हैं तो हो सकता है आपको 5 मिनट लगे. ओके, सो देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप डेटा को एक्सेल पे एंटर करें या किसी और फॉर्मेट में एंटर करें और उसको SPSS पे इंपोर्ट कर लें. तो इसके लिए आप लोगों के साथ एक फाइल मैंने शेयर की है, दैट इज demo1.sav. ठीक है, सॉरी demo1.xlx. वो फाइल आपके लिए शेयर की है. आप उस डेटा को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं. तो इसके लिए you will go to file menu, then in open. Now I am closing the data and opening it. You can now view file, open. There are 4 options: data, syntax, output, script. Data is for opening the data set. If you are working with SPSS and you have saved the output of the SPSS, then for opening that output you can use output option. If you want to run SPSS on the basis of command, then you can use syntax. Okay, so I am going to open data. Go to open and data. Now give the location where your data set is saved. SPSS पूछेगा आपको कौन सा डेटा सेट ओपन करना है, तो आप उसकी लोकेशन बताएंगे पहले कि वो डेटा सेट कहाँ पे है, उसका नाम क्या है. मेरा डेटा सेट डेस्कटॉप पे है. आई एम गोइंग टू डेस्कटॉप इन द वर्कशॉप कॉमर्स नाउ, बट इट इज नॉट शोइंग एनी एक्सेल फाइल. हमने डेटा की लोकेशन तो दे दी लेकिन इसमें कहीं पे भी एक्सेल फाइल नहीं शो हो रही. तो इसके लिए यहाँ पे फाइल ऑफ टाइप लिखा हुआ है, फाइल्स ऑफ टाइप. आप इस पे जाएंगे, यहां से आप फाइल का टाइप चेंज कर देंगे. आपका डेटा एक्सेल में है, आप एक्सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं. आपका डीबीएस फॉर्म में है, आप डीबीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं. आपका जिस फॉर्म में डेटा है यू कैन यूज दैट फॉर्म. अगर आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में यानी कि नोटपैड पे एंटर है, यू कैन यूज टेक्स्ट, DAT और CSV फाइल. आई एम सेलेक्टिंग एक्सेल. जैसे ही आप एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे एक्सेल के फाइल्स शो होने लगेंगी. नाउ इट इज demo1.xls. select that file and click on open. जब आप डेटा के ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी एक्सेल फाइल में इन जनरल 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3. आपका डेटा किस शीट पे है ये आपको बताना पड़ेगा. यहाँ वर्कशीट में से आप उस शीट को सेलेक्ट कर लेंगे. मेरे में बाय डिफॉल्ट केवल एक ही शीट है, सो इट इज शोइंग ओनली 1 शीट.
then click on OK. Now your data is open. Now you can see it is showing same data what you were using for data entry. There were only 30 units. I think it have 3201 units. Sorry, it has 3199 units. ओके, तो आप एक्सेल पे एंटर किए हुए डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. अब बात करते हैं जनरल लाइफ में हम लोग सर्वे को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सर्वे को कंडक्ट करने के लिए हम लोग क्वेश्चनर को फिल कराते हैं. देन उस क्वेश्चनर की डेटा एंट्री करते हैं. क्वेश्चनर अगर बड़ा है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 50% क्वेश्चनर ए ने एंटर किए, 50% क्वेश्चनर बी ने एंटर किए. या ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन ए को ए ने एंटर किया और सेक्शन 2 को बी ने एंटर किया. तो इस तरह से आपको डेटा से दो अलग अलग लोगों ने या दो अलग अलग पार्ट्स में डेटा को एंटर किया है. आप चाहते हैं कि आपका डेटा एक ही SPSS फाइल में आ जाए. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम तीनों फाइल को अलग अलग ओपन कर लेंगे. हमारे पास 3 फाइल है, demo1, demo2 एंड demo3. ठीक है, अब आप फाइल्स पे जाके देखेंगे तो demo1 में 3199 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 3199 पर्सन्स का डेटा है. demo2 में 3200 ऑनवर्ड्स का डेटा है. और ये सभी डेटा इनकम तक का ही है, बाकी वेरिएबल्स नहीं है. और थर्ड फाइल अनटाइट जो आपके में अनटाइटल्ड 4 के नाम से ओपन हुई होगी, जिसको हम डेमो एक्सेल 3.xls कह रहे हैं, उसमें जो डेटा है वो बाकी वेरिएबल्स हैं और पहले वाले डेटा सेट, और इसमें सिर्फ एक कॉमन चीज है, दैट इज केस नंबर. केस नंबर हमारे तीनों डेटा सेट में कॉमन है. नाउ इन फाइल्स को हम कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज करें. तो पहले हम ये करते हैं कि केसेस हमारे पूरे आ जाएं, फिर वेरिएबल्स को हम पूरा करेंगे. तो इसके लिए वी विल गो टू डेटा, just a minute. Yes, we will go to data and go to merge files. When we go to merge files, there will be two options: add cases, add variables. Add cases में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि दो फाइल्स मर्ज होके एक बन जाएंगी, बट उनमें वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, वेरिएबल्स के नाम सेम होने चाहिए. When you will go to add variables, then उनमें कोई एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो दोनों डेटा सेट में कॉमन हो. So first we add case. जब आप ऐड केस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होके आएगी. इस विंडो में आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, whether you would like to use an open data set or you would like to use an external SPSS statistics data. यानी कि मर्ज करने के लिए जो डेटा हमारा है वो SPSS फॉर्मेट में ही होना चाहिए. अगर वो एक्सेल फॉर्मेट में है तो we cannot merge them. So I have opened the data set. My cases are in untitled 3.
So I am selecting the data untitled 3. Then click on continue. Now you can see there are two options when you click on continue: unpaired variable and variables in active data set. So you can see there is no unpaired variable. Both the data set have same variables. दोनों data set में केवल common variables है, कोई भी अलग variable नहीं है. Then you can, there is one more option, include case source as variable. Click on it. No, include case source as variables. It will generate a new variable. आपके जो ओरिजिनल डेटा सेट में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ये दोनों फाइल के हैं. दोनों फाइल में वेरिएबल्स का नाम सेम है. जो मैंने चेक किया है, एक ये नया वेरिएबल जनरेट करेगा. ये आपका आइडेंटिफायर होगा कि आपका डेटा किस फाइल में है, फाइल 1 में है या फाइल 2 में है. जैसे मान लीजिए आपको डेटा सेट एंटर करते समय कोई गड़बड़ हो गई. जैसे अभी मुझसे पहले प्रोफेसर राजीव पांडे लेक्चर ले रहे थे. उन्होंने कहा किसी की हाइट 9 फीट 5 इंच है, विच इज इम्पॉसिबल. यानी कि डेटा एंट्री में कहीं गलत है. बाय मिस्टेक 6 की जगह पे 9 का बटन दब गया है. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस पर्सन द्वारा एंटर किया गया डेटा है? आपके पास ये रिकॉर्ड है कि 1 से 3199 केसेस ए ने एंटर किए, 3200 से ऑनवर्ड केसेस बी ने एंटर किए. अगर आपको ये डेटा सेट में दिख जा रहा है ये फाइल 1 से या फाइल 2 से, आप उस पर्सन के पास या उसके द्वारा लिए गए क्वेश्चनर को रिव्यू करके उस केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. इस पर्पस से हम इंक्लूड केस सोर्स एज वेरिएबल का यूज करते हैं. देन क्लिक ऑन ओके. जस्ट ए मिनट. When you click, you can see both the data sets are in same file. Here, after 3199, you can see the data of 3200, 201 and onwards. इसके साथ में आपका एक नया वेरिएबल source 1 जनरेट हो गया है. It is showing two value, 0 and 1. 0 का मतलब है आप जिस फाइल में मर्ज कर रहे हैं वही फाइल. 1 का मतलब है आप दूसरी फाइल जिससे डेटा को ले रहे हैं. ठीक है, एक फाइल आप मर्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं और दूसरे फाइल से डेटा उसमें लाके मर्ज कर रहे हैं. तो 0 जिसमें आप मर्ज कर रहे हैं, 1 जिसकी मदद से आप मर्ज कर रहे हैं. अब हमें इसमें केस इंक्लूड करने हैं. देन वी अगेन गो टू डेटा, देन गो टू मर्ज फाइल, add variables. Now जो हमारे पास अलग variables थे that are in untitled 4. So we select untitled 4. Again there are two options, an open data set and SPSS external file. So I am using open data set and I am selecting untitled 4. Click on continue. अब आपको इसमें दिखेगा there are two type of variables. One is new active data set and other is excluded variables. So दोनों में एक कॉमन चीज है, that is केस नंबर. आपके मान लीजिए डेटा केस नंबर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों फाइल्स को एक दूसरे में मर्ज कराएंगे. That is click option, match cases on keyword. When you open one by one data set, it will give the numbers untitled 1, untitled 2, untitled 3 onwards. आपने सबसे पहले डेटा सेट एंट्री करने की कोशिश की, उसको बाय डिफॉल्ट ये नाम दे देगा untitled 1. ठीक है, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं आप उसको किसी और नाम से सेव कर सकते हैं. आपने उसके बाद दूसरा डेटा सेट ओपन किया demo1.xls. ठीक है, तो SPSS में वो डेटा सेट आपका untitled 2 के नाम से आ जाएगा. आप तीसरा डेटा जो ओपन करेंगे वो untitled 3. चौथा डेटा आप ओपन करेंगे that will be untitled 4. उसको आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हैं.
So we tick on the box match cases on key variables in source file. Now which variable we can take case number as key variable. आपके डेटा सेट में कुछ इस टाइप से लिख के आ रहा था, केस नंबर दोनों में तरफ आ रहा था। पहले आप केस नंबर को न्यू एक्टिव डेटा सेट से वापस एक्सक्लूडेड वेरिएबल में लाएंगे, फिर आप दोनों केस नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करके की वेरिएबल में पुट कर देंगे। इज इट क्लियर? Now click on OK. When you click on OK, आप देख सकते हैं आपके डेटा सेट में आफ्टर सोर्स देयर आर ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एड्रेस, इनकम कैटेगरी, कार प्राइस, कार कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे वेरिएबल्स एक के बाद एक ऐड होते चले गए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? एक बार फिर से रिपीट कर दें। ओके, first we will open the data set. Suppose I am opening demo1.xls. Okay, now you are confusing with untitled 1 2 3 4 5. There is a button of save. आप इसको सेव कर लीजिए किसी एक लोकेशन पे। It is demo1. Okay, again I am entering and I am opening another data which is demo2. Save it as demo2. Then open third data set, demo3. Then save it as demo3. Okay, is it clear? अब हमको वेरिएबल्स ऐड करने हैं आपस में। हम demo1 पे जाएंगे, डेटा में मर्ज फाइल्स पे जाएंगे, देन ऐड केसेस। ऐड केसेस में हमारे पास एन ओपन डेटा सेट का ऑप्शन आ रहा है। नॉट नेसेसरी, अगर आप केसेस में सेव कर लिया है तो आपको फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल केवल एक्सेल में सेव है, देन यू नीड टू ओपन इट इन SPSS फॉर्मेट, because for merging it cannot consider any other type of format. तो इसमें हम demo2.sav को सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, देन क्लिक वेरिएबल इंक्लूड केसेस सोर्स एज वेरिएबल्स। तो आपके में मे बी आना तो नहीं चाहिए, बिकॉज what data I have sent I am using that one. जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है मैं उसी डेटा को यूज कर रहा हूँ। अनपेयर्ड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, या आप किसी के साथ पेयर करना चाहते हैं, देयर इज ए ऑप्शन ऑफ पेयर हेयर। ओके, आप दोनों तरफ उस वेरिएबल को सेलेक्ट करके आप उसको पेयर कर सकते हैं। अनपेयर्ड वेरिएबल आपके जैसे एक डेटा सेट में आपने नाम दे दिया एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, एक में आपने दे दिया EMPL अंडरस्कोर कैटेगरी, दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। दोनों डेटा सेट में आपके सेम नाम नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट विल बी अनपेयर्ड। बाय डिफॉल्ट उनको कॉमन नहीं लेगा, तो आप उनको सेलेक्ट करके आप उनकी पेयरिंग कर सकते हैं। हाँ, नाम अलग है। Okay, then click on OK.
Now you will get two data files merged and case numbers are increased in the first file. Now for merging the variables, go to add variables, select demo3.sav, click on continue. Here you can see one variable case number plus is excluded, plus is for new data set, or you can say demo.3, star is for demo.1, sorry demo1.sav. So आप कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे पे मैच करा सकते हैं. केस नंबर को पहले एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स में ले आएंगे, स्टार वाले को भी, देन की वेरिएबल के सामने एरो पे क्लिक कर देंगे, इट विल इंक्लूडेड एज की वेरिएबल. तो ये 1 से 1 को, 2 से 2 को और 3 से 3 को मैच करके ले आएगा. क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी all the variables are included in the data set. Okay. वेरिएबल मर्ज नहीं हो रहा, वेरिएबल में की फाइल मर्ज हो रही. दो फाइल में जितने वेरिएबल्स थे वो आपके एक फाइल में मर्ज होके आ जा रहे हैं. हाँ, वहां से डायरेक्ट है. आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप मर्ज कर सकते हैं. कॉपी पेस्ट में आपके डेटा की प्रॉपर्टीज नहीं आती, यानी कि वेरिएबल व्यू नहीं आता है. अगर आपने उसका वेरिएबल व्यू बना रखा है और आप वहां से डेटा को ले रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका वेरिएबल व्यू भी लेकर के साथ में आएगा. अलग से नहीं लेना पड़ रहा है, हम उस केस के ऊपर मैच करा रहे हैं. ओके, हम पहले उसको एक्सक्लूड में ले जा रहे हैं, फिर उसको एज ए की वेरिएबल और इंडिकेटर वेरिएबल उसको पुट अप कर दे रहे हैं. हम जिस फाइल से उसको कमांड देंगे उस फाइल में वेरिएबल और केसेस इंक्लूड होंगे. अगर हम फाइल 1 से कमांड दे रहे हैं तो फाइल 1 में इंक्लूड होंगे, अगर हम फाइल 2 से कमांड दे रहे हैं तो फाइल 2 में सब ऐड होगा. ओके. Now we would like to prepare variable view for it. How much time it will consist? इसका भी एक ऑप्शन है. अगर आपके पास पहले से वेरिएबल व्यू किसी और फाइल में आपने बना रखा है तो आप उस वेरिएबल व्यू को भी यहां ला सकते हैं. ठीक है. वेरिएबल व्यू को प्रिपेयर करने का एक तरीका तो है आप वेरिएबल व्यू में जाकर के वेरिएबल व्यू को एंटर करें. दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप डेटा में डिफाइंड डेटा प्रॉपर्टीज पे चले जाएं. हियर इट इज ऑप्शन. ओके, आप डिफाइंड डेटा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे. आपको नहीं पता कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, आप उसको स्कैन पे सेट कर देंगे. दैट मीन्स आप सभी वेरिएबल्स को क्लिक सेलेक्ट करिए, वेरिएबल टू स्कैन में पुट करिए, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. ओके. आपका इस तरह का एक, जब आप ओके करेंगे या आपकी एक ओपन होके आ जाएगी. इसमें आपको बाय डिफॉल्ट पहला वेरिएबल केस नंबर सेलेक्ट है, उसका मेजरमेंट लेवल दिख रहा है, उसका रोल दिख रहा है, उसकी वैल्यू शो हो रही है. ओके. सपोज हम एजुकेशन पे जाते हैं. नाउ एजुकेशन में ये आपको नॉमिनल वो सजेस्ट कर रहा है. आपको लगता है कि ये नॉमिनल नहीं ऑर्डिनल है, यू कैन चेंज इट टू ऑर्डिनल. ओके. आप वेरिएबल को कुछ लेबल देना चाहते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या बता रहा है, आप लेबल में लिख सकते हैं एजुकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट और एजुकेशन ऑफ द पर्सन. ओके. नाउ
व्हाट दिस 1 2 3 4 5, इसमें 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। आप इसमें 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेवल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए जहां पे आपकी 1 2 3 5 वैल्यू शो हो रही है उनके साथ में। 1 इज हाई स्कूल, 2 इज इंटरमीडिएट, 3 is graduation, 4th is post graduation, I am typing it in short PG। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीजी के ऊपर होते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, यू कैन टाइप अबव पीजी और यू कैन टाइप पीएचडी। ओके, आपके पांचों लेवल्स डिफाइन हो गए। देन क्लिक ऑन ओके। इसी तरह आप बाकी वेरिएबल के इसी के साथ में करके ओके कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप एक एक वेरिएबल का करके ओके करें, आप सभी वेरिएबल के लिए इस तरह से डिफाइन करके ओके कर सकते हैं। आई वांट टू शो व्हाट चेंजेस वुड अकर, क्लिक ऑन ओके। नाउ गो टू द वेरिएबल व्यू। आप देखेंगे एजुकेशन में जो जो चीजें आपने एंटर की थी आपको वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरह से आप 2-3 वेरिएबल का एक साथ एंटर करके देखेंगे, आपको उन 2-3 वेरिएबल्स के लिए भी वो चीजें शो होंगी। ओके, किसी को कोई डाउट? तीसरा तरीका होता है वेरिएबल व्यू प्रिपेयर करने का। एक तो आपने वेरिएबल व्यू को पहले से प्रिपेयर किया, फिर डेटा एंटर किया। दूसरा तरीका है आपने स्कैन करके एंटर किया। तीसरा आपने वेरिएबल व्यू किसी और फाइल में बना रखा है, आप वहां से डेटा की प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने डेटा आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। अगर आपके पास SPSS है तो SPSS की सैंपल फाइल्स में demo.sav के नाम से एक डेटा सेट अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग कहां से जाएंगे? आप लोग जाएंगे सी ड्राइव में, उसमें प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर होगा। जिनके पास विंडो 8 या विंडो 10 है उनके पास प्रोग्राम x86 का फोल्डर होगा, प्रोग्राम फाइल्स x86। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा IBM का। ओके, आप IBM के फोल्डर पे जाएंगे, उसके अंदर SPSS मिलेगा, उसमें स्टैटिस्टिक्स का फोल्डर होगा। आप स्टैटिस्टिक्स फोल्डर में जाएंगे, उसमें आपका वर्जन होगा, आपने के पास जो भी वर्जन है 20, 21, 22, 23 और 29 जो भी वर्जन है आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके अंदर एक फोल्डर होगा सैंपल्स का, आप सैंपल्स पे जाएंगे। देन उसके अंदर इंग्लिश का फोल्डर होगा, आप इंग्लिश पे जाएंगे और उसमें एक डेटा सेट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं demo.sav। ओके, इस demo.sav में आपके डेटा की प्रॉपर्टीज और वेरिएबल व्यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इस demo.sav के वेरिएबल व्यू को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हम डेटा पे जाएंगे, उसमें ऑप्शन है कॉपी डेटा प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन दैट। नाउ इट इज अगेन आस्किंग, आप ओपन डेटा सेट का यूज करना चाहते हैं, आप एक्सटर्नल SPSS डेटा फाइल को यूज करना चाहते हैं। आई विल सेलेक्ट एन एक्सटर्नल SPSS स्टैटिस्टिक्स डेटा फाइल, क्लिक ऑन ब्राउज। आप ब्राउज करेंगे, उसके बाद लोकेशन देंगे जहां आपकी डेमो वाली फाइल सेव है। देन क्लिक ऑन ओपन, फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे उस फाइल का पूरा पाथ लिख के आ जाएगा। ओके, यू कैन सी फुल पाथ इज हियर। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ आपके ओरिजिनल डेटा सेट में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और
आपके जहाँ से आप प्रॉपर्टीज को कॉपी कर रहे हैं वहां पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो आपके शो हो रहे हैं। सोर्स डेटा वेरिएबल्स, दैट इज जहां से आप कॉपी, जहां पे आपका डेटा है उसमें आपके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। देन मैचिंग एक्टिव डेटा सेट। ओके, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है, यू कैन सेलेक्ट ऑल और यू कैन सेलेक्ट एज पर योर चॉइस। आपको वैल्यू लेवल कॉपी करना है, आपकी उसको मिसिंग वैल्यू कॉपी करनी है, आपको वेरिएबल लेवल कॉपी करना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं। आप इसमें चेक और अनचेक कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। नाउ यू कैन सी आपके सभी वेरिएबल्स के लेबल्स आ गए जिनके आप देना चाह रहे थे। जिनमें आपकी कैटेगरीज नहीं डिफाइन थी, यू कैन सी कैटेगरीज डिफाइन हो गई हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप वेरिएबल व्यू को, अगर आपने पहले से बना रखा है तो उसकी मदद से आप यहाँ वेरिएबल व्यू की प्रॉपर्टीज को कॉपी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Now there is a smaller time, it is 5 to 5:08. However, I would like to consider some more options, but due to lack of time I am not considering today. But topics remaining will covered in the lecture after regression analysis, that is on Friday. I think there will be hands-on practice for regression analysis will be smaller than 1.5 hours. And that situation I will take other options, that is coding and recoding of the data and other options. Okay, किसी को कोई doubt? Does anyone have any doubt? ऑफलाइन कैंडिडेट्स को डाउट है, यू कैन आस्क। ऑनलाइन कैंडिडेट्स को अगर कोई डाउट है, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, आई विल आंसर यू। Okay, I am thinking no one is asking the question. Yes. Sampri, mic दे दो। Now ask through that mic. कैसे, जैसे आप डेटा सेट को एंटर करते हैं, आपने पहला क्वेश्चन एंटर किया, दूसरा क्वेश्चन एंटर किया, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो आप कौन सा क्वेश्चन से आप डेटा ले रहे हो? सो यू विल गिव ए नंबर टू दैट 1 2 3 4 and that will define case number here. You can define case number or you can define as serial number to identify from where you are taking the data. It will be helpful if you are taking some mistake in entering the data, then from serial number you can identify, okay, it is that questionnaire and we can make it correct. Okay, any other question? पीछे लास्ट रो में। Okay, you would like to delete, just click here, there is option clear. Okay, you can delete the variable. Any other question? Any other would like to ask the question? Okay, then thank you.